Hello everyone, welcome to the Manunglo classes in the session of Daily News Analysis. Today is 30th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to discuss the energetic thought of the day. And this is, in the middle of difficulty lies opportunity. This was said by Albert Einstein. उन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी डिफिकल्टी में होते हैं तो उसी टाइम पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है. सो डोंट अफ्रेड विद डिफिकल्टी. आज जो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी अदर अपने गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जब भी कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, देन थिंक दैट आफ्टर दिस डिफिकल्टी you will find something better, and this difficulty, to cross this difficulty, there is an opportunity. So first of all, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. So try to answer the question before I provide you the correct answer. The first question is, the southwest monsoon in Indian subcontinent is critical for which type of crops? Which type of crops? तो कौन सी crops के लिए important होता है, critical होता है, that is southwest monsoon. So guys, this is very important for kharif crops because rabi crops are the crops which are sown after the southwest monsoon, and wheat crop and mustard crop both are in the category of rabi crops. और जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, ये क्रॉप्स होती हैं जिनको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जो कि इंडिया में अराउंड जुलाई से और सितंबर अक्टूबर तक चलता है. सो दिस इज द मानसून सीजन. ऑल्दो इट रीचेस, इट मीन्स मानसून, ऑल्दो द साउथ वेस्ट मानसून रीचेस एट द कोस्ट ऑफ केरला around 30 or 31st May, or sometimes it may be 1st or 2nd June. So now we are going to discuss another question. Such kind of information or updates are provided by the India Meteorological Department कि इस बार मानसून का क्या स्टेटस रहेगा, मानसून से इस बार रेनफॉल नॉर्मल रहेगी या अबव नॉर्मल या below average. So these kind of information or updates are updated by or provided by the India Meteorological Department, and you have to find out the headquarters of this organization. It is in Hyderabad, New Delhi, Chennai or Mumbai. It is actually in New Delhi. So we are going to another question. Who is the current Director General of IMD, India Meteorological Department? So it is K. Kumaraswamy or K. Stalin, Mrityunjay Mohapatra या K. Rajiv Kumar. So the correct answer is Mrityunjay Mohapatra. His name is in limelight in recent days because of the updates are being provided by the Director General of IMD, and he is of course Mrityunjay Mohapatra. Next question is Sakhalin Island. Yesterday we discussed some points regarding Chabahar, and in that session we also discussed about Sakhalin Island. So you have to find out that it is the territory of which country? Australia, USA, India or Russia? So the correct answer is D, that is Russia. So Russia has the territorial sovereignty of Sakhalin Island. हैफा पोर्ट, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने इसके साथ में, गवर्नमेंट तो क्या, अडानी पोर्ट ने इसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उस कंट्री का जो हैफा पोर्ट है अडानी ग्रुप ने उसको परचेज किया था. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री. इसको 2023 में बाई किया था अडानी ग्रुप ने. सो इट इज इन ईरान, इजराइल, स्पेन, इंडोनेशिया. सो द करेक्ट आंसर इज इजराइल. तो इजराइल के साथ में जो डील हुई थी उसमें हैफा पोर्ट को अडानी ग्रुप ने परचेज किया था. यस्टरडे वी आल्सो डिस्कस अबाउट I2U2. So you have to know what is I2
and U, 2 times I, 2 times U. This is an alliance of India and Israel, 2 times I and 2 times U, United Arab Emirates and United Arab States. So this is the correct answer. जो I2 U2 है ये एक अलायंस है जिसमें इंडिया और इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? सो ग्वादर पोर्ट भी न्यूज में था। सो इट इज इन इजराइल, जापान एंड पाकिस्तान या ईरान। सो द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। सो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का एक पॉपुलर पोर्ट है और इसको सपोर्ट किया है चाइना ने। ऐसे समझो कि इसको चाइना ने लीज पे ले लिया है, चाइना ने परचेज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Recently, around 13 people died in a fire accident in the Game Zone building in India. This place is in the city Rajkot in ये कौन से स्टेट में है? So it is in गुजरात। गुजरात में रिसेंटली एक गेम जोन में जो डिजिटल गेम जोन है उसकी बिल्डिंग में जो है फायर का इंसिडेंट हुआ और अराउंड 30 पीपल की डेथ हो गई और ये गुजरात के राजकोट का इंसिडेंट था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज इंसीडियस इंसेंडियरी। मीन्स यहाँ पर बात हो रही है कि जो चारों तरफ इंडिया में हम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर देख रहे हैं या रिसेंटली देयर आर मच और फ्रीक्वेंट न्यूज रिगार्डिंग द बिल्डिंग फायर्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट फायर। तो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में हम ये देखेंगे कि क्या क्या इसके इश्यूज हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, आइए इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। द डिवास्टेटिंग फायर्स अभी जो हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि गेमिंग सेंटर में देखी हमने, दिल्ली में देखी जहां पर जो है न्यू नेचुरल हॉस्पिटल था उसमें भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, उसमें भी कई सारे बच्चों की डेथ हुई थी। तो ये इंडिया के इंसीडियस थ्रेट्स हैं, ठीक है। और इनका जो परवेसिव नेचर है, इनका जो नेचर की जब हम बात करते हैं तो जो फायर इंसिडेंट है इनका नेचर हमें देखने को मिलता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस किसके लिए? फायर सेफ्टी के लिए, कि बिल्डिंग्स में जो फायर सेफ्टी की मेजर्स हैं उनको कंप्लायंस नहीं किया जा रहा उनका। और इसमें जो अदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती हैं कि होल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बिल्डर्स एंड प्रोप्राइटर्स टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं किया। कौन है स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो बिल्डिंग के ऑनर्स हैं, और कौन हो सकते हैं? प्रोप्राइटर्स हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे कोई हॉस्पिटल को लीज पर लिया, ओपन किया, अपना कोई इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन है? वो चाहे कोई म्युनिसिपैलिटी हो या दिल्ली में देखें दिल्ली पुलिस या दिल्ली का जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है वो हो, या अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं दैट इज गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इनके सारे के सारे एंड पर हमको नेग्लिजेंस देखने को मिलता है और दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दीज काइंड ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स। मीन्स जब आप कोई बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन यूज करना होगा टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। जबकि हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पहले ही एक डिटेल में एक कोड बनाया था दैट वाज नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में। उसमें ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या उसके रूल्स होंगे बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग में, है ना, उन सबको इसमें डिटेल में बताया गया था और म्युनिसिपैलिटी लेवल पर उनको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन जब हम देखते हैं तो मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है कि देखो जो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं वो कितनी सीरियस है इन सब को लेकर के। उनकी सीरियसनेस हमें कहाँ दिखती है कि यदि हम डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज वेबसाइट पर जाएंगे दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उस वेबसाइट का जो अबाउट सेक्शन है, आप किसी भी सेक्शन में जाएंगे, जब भी आप अबाउट सेक्शन देखेंगे तो उसमें देखो वो अबाउट सेक्शन में क्या लाइन लिखी हुई है, द फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। भाई आप खुद की ही वेबसाइट पर जब लिख रही है गवर्नमेंट कि द फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, उसमें और क्या लिखा है? इन रिसेंट ईयर्स
the requirements for fire safety cover have increased manifold, whereas the development of fire service has not made much headway. अब भाई गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि इंडिया में जो फायर सेफ्टी है या बिल्डिंग सेफ्टी है उसके लिए क्या सीरियसनेस है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनडीएमए, उसने ये रिकमेंड किया था 13th फाइनेंस कमीशन में कि इंडिया को कम से कम 7,000 करोड़ रुपए वो आप फायर सर्विस के लिए अलॉट कीजिए, वो भी उसमें डिजास्टर भी इंक्लूडेड है। बाद में फिर और कमीशन की जब बात आई, जो फाइनेंस कमीशन है, तो उसने कहा था नहीं भाई 7,000 इज इनसफिशिएंट, वी हैव टू अलोकेट 90,000 करोड़ रुपीज, जिससे कि हम म्युनिसिपैलिटी लेवल पर जो फायर सर्विस है, जो डिजास्टर से डील करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम्स है, उनका हम रिवैम्प कर सकें, उनका हम रिफॉर्म्स कर सकें, इक्विपमेंट्स ले सकें। तो आप सोचिए, लेकिन अब अगर हम बात करें जैसे 2019 की तरफ जब हम पहुंचते हैं, तो होम मिनिस्ट्री रिस्पांस टू द राज्यसभा, जब राज्यसभा में होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिस्पांस दिया गया, क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बताया, तो इंडिया में अभी केवल 3,377 फायर स्टेशन हैं। लेकिन जब 2012 में देखो, 2019 में हमने रिपोर्ट दी गवर्नमेंट ने कि इंडिया में केवल 3,377 फायर स्टेशन हैं, जबकि देखो इससे भी 7 इयर्स अगो 2012 में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये कहा गया था कि हमको इसके जस्ट डबल, कम से कम क्या चाहिए कि इसको अगर मैं डबल कर दूं तो अराउंड 66 समथिंग आएगा। तो हमको करीब 7,000 क्या चाहिए, फायर स्टेशन चाहिए, जबकि है कितने हमारे पास में 3,300 समथिंग। तो ये भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, एक और यहाँ पर हमको बड़ा पॉइंट मिलता है देखने को कि 55,000 फायर सर्विसमैन जो हमारे पास में है इन 2019 में, जबकि हमारे पास में रिक्वायरमेंट कितनी है 5,60,000 की। तो देखो कितना बड़ा इसमें गैप है। सेंटर ने इसमें विलेट, हमको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीजें लेट दिखाई पड़ती हैं कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपीज को साइड में रखने की बात की थी कि हम इसको केवल उसी के लिए रखेंगे, स्टेट्स को हम 5,000 करोड़ रुपीज अलॉट करेंगे और 1,400 करोड़ रुपीज जो स्टेट्स हैं वो अपनी तरफ से सेट करेंगे, इसमें उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि फायर सर्विस और डिजास्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लिए या उसके जो है मैनेजमेंट के लिए होंगे। बाद में अगर हम देखें तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने तो स्पेशल अपनी रिकमेंडेशन दी थी 12.5% की। क्या है ये 12.5%? उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी फंडिंग अलॉट होती है उन सब में से 12.5% को तो आप केवल डिजास्टर, फायर या ऐसे इश्यूज के लिए साइड में उठा करके रखो और एवरी ईयर उसको जो है आप उसको एक्सपेंड करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। मीन्स जितना भी बजट बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से 12.5% को आप हमेशा डिजास्टर से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस के लिए रखना होगा हमको। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है कि अपना एक स्पेशल फंड है वो उसको वहां पर 12.5% को वो अपने फंड में से डिजास्टर से डील करने के लिए उनको जो है साइड में अलोकेट करना होगा। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द 2016 एनबीसी, जो आया था जो नेशनल बिल्डिंग कोड, तो उसको अगर हम देखें तो उसमें हमको अभी भी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की भी रिक्वायरमेंट है जो कि आ चुका है, लेकिन अभी उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं है। सो वी नीड हॉलिस्टिक अप्रोच की इसमें रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम फायर्स को एड्रेस कर सकें। जैसे कि उसमें एग्जांपल देते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिस मटेरियल से वहां पर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो देखना होगा कि वो फायर के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल तो नहीं है। इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग यूज हो रही है सारी की सारी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में, उस पर गवर्नमेंट की नजर रहनी चाहिए कि वो जो वायरिंग है वो बहुत ज्यादा सेफ हो। एयर कंडीशनिंग को आप कहाँ लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, बिल्डिंग के किस पार्ट में आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, कैसे उसकी वायरिंग कर रहे हो, उस सब के लिए कोड हो। अ होल रेंज ऑफ कूलिंग मटेरियल्स, कि क्या क्या कूलिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो, इन सबको हमें क्या करना होगा, उन सबको रिफॉर्म करना होगा, रिवैम्प करना होगा। मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉलिटी है
पूरी की पूरी हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि पार्लियामेंट में या स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठे हुए हैं या म्युनिसिपैलिटी लेवल पर बैठे हुए हैं, या फिर हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स की जो अपने स्टार्टअप्स को क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, नया बिजनेस लगाते हैं, इन सबको मिलकर के अर्जेंटली इस इशू पर काम करना होगा, तब जाकर के हम इस इंसीरियस थ्रेट को एड्रेस कर पाएंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द फायर सर्विस और द फायर इंसिडेंट्स। Now we are going to discuss another important news, that is new policy to deny government jobs to the kin of militants in Kashmir। अभी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर के आई है और इससे हेल्प मिलेगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के जो लैप्स हैं, उनको जो है हमको एड्रेस करने में इससे हेल्प मिलेगी। क्या पॉलिसी लेकर के आए हैं? तो ये पॉलिसी लेकर के आए हैं कि जो भी लोग गवर्नमेंट में जॉब चाहते हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और उस बैकग्राउंड चेक से अराउंड 50,000 फैमिलीज को उससे क्या होगा, इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। अभी रिसेंटली जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि अब हम जो गवर्नमेंट जॉब जितनी भी होंगी उसमें बहुत अच्छे से बैकग्राउंड चेक करवाएंगे। कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट जॉब में आ रहा है तो उसका हम बैकग्राउंड चेक बहुत अच्छे से करवाएंगे। अब उसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी होंगी, इंटेलिजेंस एजेंसी होंगी, वो दोनों ही टाइप का जो है बैकग्राउंड चेक करेंगी, जो कि वर्टिकल भी होगा और हॉरिजॉन्टल भी होगा। क्या होता है ये? सपोज करो एक पर्सन है, ठीक है, तो इसका हमने देख लिया कि इसके फादर का क्या बैकग्राउंड है, इसका कोई अगर सन है उसका क्या बैकग्राउंड है। ये तो हो गया वर्टिकल में, किसी की खुद की फैमिली में। हॉरिजेंटल बैकग्राउंड में क्या जाएगा, इसके पैटर्नल साइड के साथ साथ इसके मैटरनल साइड की भी इंक्वायरी की जाएगी। बिकॉज जो कश्मीर की प्रॉब्लम है उसमें जो मिलिटेंट्स हैं वो पुलिस फोर्सेस में उनमें बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, तो जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च करना होता है तो वो इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से उसको लीक कर देते हैं। अब खुद के ही उनके पुलिस सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर मिलिटेंट्स हैं जो कि पुलिस फोर्सेस में पहले जो है रिक्रूट हो गए थे वहाँ की गवर्नमेंट्स के समय पर, जो वहाँ की जो है लोकल गवर्नमेंट थी, और उसको अब ब्रेक करना होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो भी इंक्वायरीज होंगी उनको डेप्थ लेवल पर इंक्वायरीज को किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये डेटा देते हैं द हिंदू, एक डेटा के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि देखो हमने कुछ ऐसी पॉलिसी हम 1995 में लाए, 2004 में लाए, फिर 2010 में लाए, लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ किया नहीं। उसमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए कि जो मिलिटेंट्स हैं वो अगर सरेंडर कर देंगे तो उनको कुछ पैसा ऐसा मिलेगा, जॉब मिल जाएगी। एक ऑफिशियल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एटलीस्ट 4081 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया था बिटवीन 1995 से लेकर के 2013 तक, और वो इसलिए उन्होंने सरेंडर किया कि उनको कुछ रिहेबिलिटेशन की पॉलिसीज थी कि वो अपना मिलिटेंसी का धंधा छोड़ करके और नॉर्मल एक जो सोसाइटी की लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की वो जिए वो। ठीक है, ऑफिशियल फिगर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 30,000 फैमिलीज इन कश्मीर whose kin are or were militants given that 22,000 militants have been killed। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ ईयर्स में 1919 से अगर हम स्टार्ट करें तो इतने लोगों की इसमें डेथ भी हो चुकी है। 4,000 मिलिटेंट्स इसमें से पीओके वाले एरिया में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कंक्लूजन कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको बैकग्राउंड चेक पर बहुत काम करना होगा। बैकग्राउंड इंक्वायरी बहुत अच्छे से करवानी होगी कि कोई भी मिलिटेंट या मिलिटेंट का रिलेटिव कभी भी पुलिस फोर्स में, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज पूरे सिस्टम को बहुत बुरी तरह से अंदर ही अंदर ये लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी भी कश्मीर में, ठीक है, अभी भी कश्मीर में जब सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी ये जब अपना कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं, जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, अगर वो उनके साथ में कोई भी ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द बहुत सारे केसेस में, कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो मिलिटेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं, उनके इन्फॉर्मर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को पास कर देते हैं और बाद में वो ऑपरेशन उनका असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल होता है। हमारे ही जो जवान से उनकी उसमें डेथ हो जाती है, बिकॉज
वो जो मिलिटेंट्स हैं पहले से ही अपना जाल बिछा करके रखते हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट को बड़े लेवल पर वर्क करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पिरिट ऑफ यूएन डेड इन गाजा। जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसिप टैय्यप एर्दोगन, ये कह रहे हैं कि भाई देखो गाजा में इतना सारा अटैक हो रहे हैं, तो हमारा इस्लामिक वर्ल्ड क्या कर रहा है, यूएन क्या कर रहा है, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, ये तो पूरे इस्लाम के अगेंस्ट में अटैक हो रहा है जो इजराइल अटैक कर रहा है, और यूएन अपने खुद के स्टाफ को नहीं बचा पा रहा है, तो तुम किस चीज के लिए वेट कर रहे हो। कुल मिलाकर के ये सारी की सारी बातें ये कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि वर्ल्ड के सारे इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाए, इस्लामिक कंट्रीज उनको ग्रुप में आ जाना चाहिए और इजराइल के अगेंस्ट में फाइट करें। अब देखो इस तरीके के जब भी ऐसी स्पीचेज आती है, तो जो भी सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में या किसी रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर अगर पूरे कंट्रीज को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, यूनाइट करना चाहता है, तो ये अगेन फिर से इस वर्ल्ड में रिलीजन के बेसिस पर इस वर्ल्ड को डिवीजन की ओर हम ले जा सकते हैं। और जो रेसिप टैय्यप एर्दोगन है, उनका खुद का अपना एक बैकग्राउंड है कि ये हमेशा अपने आप को पूरे इस्लाम का लीडर बनाने के लिए ट्राई करते रहते हैं हमेशा से। अब इनकी इस लीडरशिप को चैलेंज करता रहता है हमेशा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरबिया या जो अदर कंट्रीज है जैसे कि ईरान हो गया, कई बार इसको चैलेंज करता है पाकिस्तान। तो एक्चुअल में जब ये लड़ाई चलती है, इस बात की चलती है कि इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर कौन कंट्री है, तो उसके चक्कर में ये कुछ भी अपनी स्पीचेस वगैरह देते हैं। हालांकि जो इनोसेंट पीपल है उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। अब आने वाली है कुछ ही टाइम में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO इसको ऑर्गेनाइज करेगा और इसका मेन पर्पज क्या होने वाला है वो हम आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स कि इसमें एक पॉइंट तो ये होने वाले हैं कि वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको काम करना होगा मिलकर के और अपने अपने यहाँ पर सर्विलेंस को फोकस करना होगा कि जो कोविड-19 हुआ उसमें सर्विलेंस की कमी थी और देयर वाज लैक ऑफ सर्विलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी जो इसके 196 कंट्रीज हैं अराउंड, वो सब मिलने वाले हैं, इन सब की मीटिंग होने वाली है और उससे फिर बहुत सारी चीज़ों क्या करेंगे कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, सपोज करो इंडिया, जापान, सबकी जो लैब्स होंगी उनको भी कनेक्ट करने की इसमें बात की जाएगी। जैसे कि अभी एक लेकर के आ चुका है WHO ऑलरेडी कोविनेट, है ना, जो वर्ल्ड की सारी लैबोरेटरीज को कनेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पर अभी मीटिंग होने वाली है। बाकी इसके जो अदर की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा MCQ की फॉर्मेट में कि इसमें से क्या क्या पॉइंट आपके लिए है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किस प्लेस पर, आप भी थोड़ा सा क्या करें, इस पर होमवर्क करें। होमवर्क मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किस प्लेस पर होगी, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस कब आए, जैसे कि 1969 में, या उनको रिवाइज कब किया गया, ये सब। और ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं, तो आपको इस पर थोड़ा सा होमवर्क करना है। नाउ वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन, सो बाय बाय, टेक केयर।